Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we will continue the topics that we had started in the last class. If you recall, the area that was being covered in the last session, we were talking about targeting. और उसमें अगर आपको याद हो, during that portion we had discussed the targeting conditions depending on the kind of industry structure that was existing, the kind of customer behaviors or customer characteristics that existed, as well as the capabilities of the company. Remember, we have been talking about when we target something, we need to link two things together. One is the customer's needs and wants, what they really want in terms of value, and the ability of the company to be able to satisfy that. If these two things link up, we know that we have a good target to attack or to move into in terms of marketing. तो उसमें हमने डिस्कस किया था in terms of the emerging markets, we talked about the growth markets, उसमें क्या conditions होती हैं customers की, then in the mature market, and then we discussed the global markets. और मैंने last time ये कहा था कि once we have done this, we will be looking at the strategic logic using product life cycle and positioning frame. मकसद उसका ये है कि जब भी हम कोशिश करते हैं वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए, तो हमारी लॉजिक में उनकी इंटीग्रेशन का भी एक खास इशू होता है ना. इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वी हैव टू कीप रिकॉलिंग थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो दैट वी कैन ब्रिंग देम इनटू पोजीशन व्हेन वी डिस्कस समथिंग न्यू. अब हम चूंकि पोजीशनिंग के उस पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे पास एक टॉपिक जो हम पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके होंगे इन आवर क्या नाम है पास्ट टाइम्स व्हेन वी वर studying for MBAs or BBAs, that is known as the product life cycle. This will be discussed in detail by me when we go into the product area, when we develop our product strategies. तो वहाँ की जो लॉजिक है वो मैं यहाँ सिर्फ इस वजह से हाईलाइट करने लगा हूँ कि इसका ताल्लुक टारगेटिंग की लॉजिक जो मैंने क्रिएट की थी इन द लास्ट सेशन उससे बड़ा लिंक करता है. और अगर आप उसको एक ग्राफिक फॉर्म में देखें, पिक्चर फॉर्म में देखें, तो उससे बेहतर अंदाजा हो जाता है कि व्हाट आर वी डिस्कसिंग. तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ इसको हम लिंक करेंगे. अगर आप याद रखें, वी हैव डिस्कस्ड इमर्जिंग मार्केट्स. नाउ अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो कि मैं फिर ड्रॉ करता हूं, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स आर नॉर्मली दोज मार्केट्स वेयर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन टेक्स प्लेस. जस्ट टू लिंक दीज टू थिंग्स टुगेदर. और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर हमने जब डिस्कस किया था, तो we had suggested that the customers are not very clear of their own preferences. अब चूंकि preferences उनकी clear नहीं है, तो it is very difficult to segment the market. Now again the word segmentation is moving in. अगर आपको याद हो, when we were developing the strategic market logic, strategic marketing logic, we had said that the final goal of strategic marketing is to establish segmentation, targeting, and positioning. So we are proceeding with that same logic using various theoretical frames that we had already established. अब segmentation emerging markets में बहुत difficult होती है because preferences clear नहीं होते. और इसी में कई companies succeed भी करती हैं और fail भी करती हैं. और यही हमने कहा था कि emerging markets के अंदर चूंकि customer preferences are not clear, तो जो लार्ज मार्केट कंपनीज होती हैं which are already established, they normally do not try and enter these businesses because they are not very clear how their existing businesses will be affected by entry into this new one. उनको भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो पहले ही कई मार्केट्स में बैठे हुए हैं. तो जब वो एक नई इमर्जिंग मार्केट में जाएंगे तो उनको क्लैरिटी नहीं होती कि इससे उनकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा. अगर ये बात भी हम मान लें कि दैट इज द लॉजिक, तो फिर लॉजिक कहता है कि नॉर्मली जो नई कंपनीज टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही होती हैं या किसी ने कोई नई निश ढूंढी हो नीड्स की, they are the companies which normally tend to move into emerging markets. A good example is Kodak, and I had given you a brief background on it. Kodak was the largest camera and photo film producing company in the world. They more or less controlled about 60% of the markets.
they developed a digital camera in 1978. अब देखें उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जो कि अगर वो लॉन्च करते तो इमर्जिंग मार्केट में आती, उसकी कंडीशन होती इमर्जिंग मार्केट। बट हुआ क्या? नाउ दे वर नॉट क्लियर कि जो फोटोग्राफिक जो फोटो क्या नाम है कैमरा इंडस्ट्री है उसकी लॉजिक पीछे कंज्यूमर्स की क्या होती है। कंज्यूमर्स नॉर्मली टेक फोटोग्राफ्स टू रिटेन मेमोरीज, वो अपनी याददाश्तें या यादें जो है ना वो कैप्चर करते हैं so that at a point of time they can sit down and look at them and recall the good times or the bad times, whatever the situation. तो मकसद कैमरे का, फिल्म का ये था। Now when the digital camera came into position, उस वक्त कंज्यूमर नीड्स को क्लैरिटी नहीं थी कि इसमें और क्या चीज आएगी। However, when 1980 came, तो कंप्यूटर्स लॉन्च हो गए। अब 1978 में जब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी कि कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस वक्त काम कर रहे थे फोटो फिल्म्स के ऊपर और उसमें कोई और नई चीज नहीं थी। नाउ जब कंप्यूटर्स आ गए तो नेचुरली नीड वाज क्रिएटेड। अ नीड वाज टू बी एबल टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन अ इजी मैनर। नाउ कंप्यूटर्स अलाउड दैट। सो अब 1980s के क्या नाम है पीरियड में जो कंज्यूमर नीड थी वो भी स्टैब्लिश हो रही थी और इधर से टेक्नोलॉजी जो है वो कैटेगोरिकली उस एरिया में लिंक कर रही थी। लेकिन कोडैक को ये क्लियरिटी नहीं थी कि अगर उन्होंने लॉन्च किया तो उनकी जो बाकी मार्केट है, जो फोटो फिल्म की मार्केट है, वो कैसे इफेक्ट होगी। सो दे डिड नॉट लॉन्च दिस टेक्नोलॉजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हुआ क्या कि कैनन वाज द फर्स्ट वन टू understand the logic of the need of the market in terms of storing the kind of pictures on a place or in a system जो कि easily accessible होगा और उसके लिए आपको कागजों की और एल्बम्स की जरूरत नहीं होगी। So they launched. However, when they launched, they actually entered a new emerging market. तो बात क्या हुई, जैसे कहा गया था कि लार्ज कंपनीज जो हैं वो नॉर्मली इस वजह से कि कंपनी जो है वो कैसे इफेक्ट होगी वो अवॉइड करते हैं या जान नहीं सकते फॉर वेरियस रीजन। इंटरनल क्या नाम है जिसको रिसोर्स कैपेबिलिटी बोलते हैं, जो हमने डिस्कस किया था खासा, तो उसके बेस पे उनको ये क्लैरिटी नहीं होती। नाउ इन क्या नाम है व्हेन कैनन लॉन्च्ड, तो कैनन वाज एबल टू नॉट ओनली डेवलप rapidly the technology of digital क्या नाम है कैमरा, they were also able to connect with the computers to store this device. अब अगर हम इसी को देखें तो फिर एक नीड आती है। अब नीड क्या हुई, टू बी एबल टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन और द पिक्चर्स और द मेमोरीज रैपिडली अक्रॉस द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। तो जहां कंप्यूटर था वो अपनी जगह पर स्टोरिंग डिवाइस और फिर ईमेल्स आ गई तो उसके थ्रू भेजना। अब मोबाइल फोन सिस्टम्स आ गए और मोबाइल फोन सिस्टम में आप देखेंगे जो इनिशियल मोबाइल फोन सिस्टम्स आए थे उनमें कैमराज नहीं लगे हुए थे, बट उसके बाद चूंकि ये एक न्यू नीड ऑफ रैपिडली एक्सचेंजिंग मेमोरीज केम अबाउट, तो उसके बेस के ऊपर मोबाइल कैमराज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड दिस टेक्नोलॉजी ऑफ डिजिटल कैमराज इन देयर सिस्टम्स। अब क्या है कि द पिक्चर इज टेकन, इट इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू अनदर मोबाइल फोन और मोर लेस इन क्या कहते हैं वर्चुअल टाइम में ये पिक्चर्स कैन बी एक्सचेंज्ड व्हिच वाज नॉट पॉसिबल थ्रू दी कंप्यूटर्स। अब ये इमर्जिंग मार्केट की कंडीशन है। इट कैन बी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, इट कैन बी ड्रिवन बाय the customer. Now I'll take you on the board and I'll draw this to show you how these things occur and how the positioning or targeting logic moves. Example याद रखते हुए ये भी याद रखते हुए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड कैसे हुआ था। ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर आप देखें तो इट टेंड्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन और उसकी लॉजिक ये है कि डेवलपमेंट स्टेज इस वक्त ये वाली है। दिस इज नॉर्मली द डेवलपमेंट स्टेज। फॉर एग्जांपल Kodak was developing the digital camera, was not ready to launch. However, then at a point of time they launch, and this initial part is known as where the emerging market exists,
where introduction takes place. We introduce this product. Okay, now on this scale, we have the sales revenues. We can add the number of units sold. We can have profits. And on this scale, we have time. अब इंट्रोडक्शन में भी, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी आपको इंट्रोडक्शन की कैटेगोरिकली, तो यहाँ टारगेटिंग कैसे की जाएगी? ऑब्वियसली द टारगेट वुड बी ओनली दोज पीपल हु आर क्लियर इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट. और अगर मैं इसी लॉजिक को, एक और कॉन्सेप्ट है और एक और टॉपिक है, प्रोडक्ट इनोवेशन डिफ्यूजन. प्रोडक्ट इनोवेशन डिफ्यूजन का मतलब यह है कि कोई इनोवेशन आती है तो वो किस तरह से डिफ्यूज होती है. आप लोगों को याद होगा जो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो कंज्यूमर्स होते हैं, दे आर नॉर्मली कॉल्ड इनोवेटर्स. अब वो फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि वी विल बी डिस्कसिंग दीज इश्यूज इन डेप्थ, but just to link up the logic of these frames so that we can see how positioning will be done, because that is the next topic. So introductory stage ke andar preferences are not clear, but in the introductory stage we know that innovators are the buyers. अब ये जो innovators होते हैं, इनकी एक characteristics है. We have already seen in research done long time कि इनके characteristics ये हैं कि they are first movers, they are interested in new products, they are socially very extroverts, they travel, they read a lot, and they are more interested in the product area जिसकी हम बात कर रहे हैं. So introduction में अगर उस किस्म के लोग हैं तो we have a clear position कि किस किस्म की टारगेट मार्केट होगी और उसको कैसे पोजीशन किया जाएगा, ये हम अगले उसमें डिस्कस करते हैं. Now in the same frame इंट्रोडक्शन हुई, फिर ग्रोथ स्टेज आती है. अब अगर हम ग्रोथ स्टेज में जाते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ कंडीशन चेंज कर रही हैं, यहाँ लोगों की प्रेफरेंसेस क्लियर होती जा रही हैं और कंपैटिटिवली ज़्यादा कंपनीज जो हैं इस टाइम पे मूव करना शुरू कर देती हैं. अगर हम कोडैक ही का एग्जांपल है तो कैनन के बाद जितने भी दूसरे कैमरा प्रोड्यूसिंग कंपनीज, दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन डिजिटल सिस्टम्स. नाउ द प्रॉब्लम बेसिकली इज कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या होगी पोजिशनिंग करते हुए, वेदर यू वांट टू टारगेट 1, 2, 3 सेगमेंट्स, बिकॉज यहाँ सेगमेंट्स क्लियर होने शुरू होते हैं जो कि इंट्रोडक्शन में सेगमेंट्स की क्लैरिटी नहीं होती है हमारे पास. तो यहाँ पे डिसीजन सिर्फ ये होता है कि एक सेगमेंट में जाएं और उसमें प्रोडक्ट को पोजीशन करें, या मल्टीपल सेगमेंट्स में सेपरेट पोजीशनिंग करें, या मल्टीपल सेगमेंट में एक ही मास लेवल की पोजीशनिंग करें. ओके, अब यहाँ भी अगर हम थोड़ा सा वो प्रोडक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के हवाले से देखें तो ग्रोथ में अर्ली मेजॉरिटी मूव कर रही होती है. सो वी नो फ्रॉम दैट लॉजिक ऑफ इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस के अर्ली मेजॉरिटी. अब रिसर्च ने अगेन अर्ली मेजॉरिटी की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो हाईलाइट कर दी हैं. हमें मालूम है कि अर्ली मेजॉरिटी किस किस्म की होती है, उनके करैक्टरिस्टिक्स, उनके वैल्यू सिस्टम्स क्या होते हैं, तो उनके लिए पोजीशनिंग डेवलप करना फ्रॉम दैट आउटलुक is now becoming easier. Now when we go towards mature area तो हमें ये भी पता है in our knowledge कि mature में late majority आनी शुरू होती है. Early adopters आते हैं, फिर late adopters and early majority. Naturally growth और mature cycle जो है, that is the major area where companies normally tend to exploit the situation as given. यहाँ अब along the route हमें यह भी पता होना चाहिए जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर पॉइंट के ऊपर पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करेंगी, बिकॉज द टाइप ऑफ मार्केट कंज्यूमर्स आर आल्सो शिफ्टिंग. इनोवेटर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर्स की अपनी एक लॉजिक है, वो एक खास तरीके से फॉलो करते हैं, फिर अर्ली लेट अडॉप्टर्स आ जाते हैं, फिर अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, एंड देन इन द डिक्लाइन स्टेज वी फाइंड दैट वी हैव लैगर्ड्स. लैगर्ड्स वो हैं जो किसी भी इनोवेशन को सबसे आखिर में इस्तेमाल करते हैं. तो हमारे लिए जब हम स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो भी पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमें अगर इन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर्स का पता होगा तो हमारे लिए पोजीशनिंग करना आसान है. अब मेरा मकसद यहाँ क्या था, नॉट टू एक्सप्लेन द पीएलसी,
not to explain the product innovation diffusion process. मेरा मकसद ये था कि जो हमने टारगेटिंग पे बातें की थी, अब चूंकि टारगेटिंग के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है नॉर्मली, कि हम एक सेगमेंट को टारगेट करें, मल्टीपल को करें, या पूरी मार्केट को एक ही साथ करें। तो वो तो एक डिसीजन मेकिंग है जो हमारी अपनी इंटरनल कैपेसिटीज, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, उससे उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। प्लस वी हैव टू सी के कंपेटिटिव जो मनूवरिंग है या कंपेटिटिव जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, कितनी कंपनियां मूव कर रही हैं, कौन सी किस जगह पे होगी, और अगर आप एक लेट्स से ग्रोथ मार्केट में एंट्री करेंगे तो वो क्या ऑप्शंस आपको देते हैं, और अगर आप मैच्योर मार्केट में एंटर करेंगे तो वहां ऑप्शंस क्या हैं। तो वो डिस्कशन मैं कर चुका था। अब सिर्फ इसको क्लियर करने के लिए, so that we are now in a position to understand the logic of positioning. Positioning is a very specific goal and an idea. तो हम पहले उसके जो broad perspectives हैं, we will look at them, we will try and understand them, and once we have a clear picture, we will be able to explain कि ये जो positioning है, क्या ये change करेगी over a period of time, over the product life cycle, जैसे जैसे markets shift करेंगी तो उसमें क्या होगा। और फिर जो सबसे important concept इसमें होगा वो होगा global markets में, क्योंकि globalization हमारे environment में अब एक ऐसा frame बन गया है कि companies चाहे ना भी तो they have to be ready for entry of global companies in their markets. अगर एक डोमेस्टिक कंपनी जो है वो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में ना भी जाए, but it will have to face the threat of companies moving into the country and competing against the local markets. तो अगर लोकल मार्केट को ग्लोबल मार्केटिंग या ग्लोबल कंपनीज की नॉलेज नहीं होगी, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स, टारगेटिंग और उनकी जो स्ट्रैटेजिक लॉजिक्स हैं वो नहीं पता होंगी, तो देयर डिफेंस or their own strategy will not be as good as required. Now, let's look at the concept of positioning. I hope that I've been able to explain two things very categorically. एक targeting का area है जिसके अंदर हमने कहा कि conditions होती हैं और choices होती हैं। Choices यही हैं कि एक segment में जाएं, दो में जाएं, multiple करें या पूरी market को cover करें। वो एक logic है, और उसके अंदर मैंने जैसे कहा competitive situation, industry structure, अपनी कंपनी की अपनी own capabilities and उनकी जो competencies हैं वो ऑपरेटिव होती हैं डिसीजन लेने में। लेकिन जब डिसीजन हो गया कि एक में हो, दो में हो, किस में, तो फिर डिसीजन ये होता है कि पोजीशनिंग क्या करें। अब पोजीशनिंग का मकसद सिंपल है, वो ये है कि एक वैल्यू प्रोपोजिशन होती है। वैल्यू प्रोपोजिशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वैल्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। जो भी आपने एनालिसिस की, मार्केटिंग रिसर्च की, आपने अपने लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल की, ये सब कुछ करने के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि आफ्टर ऑल वैल्यू प्रोपोजिशन है क्या। नाउ जस्ट टू कैप्चर अ बिट ऑफ व्हाट इज दिस वैल्यू प्रोपोजिशन एंड हाउ डज इट वर्क, तो उसके लिए समझने की चीज ये है कि रिसर्च में वी नॉर्मली आस्क कस्टमर्स के अगर उनके सामने प्रायोरिटीज दी जाएं कि इस प्रोडक्ट को वो क्यों इस्तेमाल करेंगे, या व्हाई वुड दे यूज दिस प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर फैशन, तो उसकी प्रायोरिटाइजिंग कर ली जाती है। एंड देन वी सी कि जो मैक्सिमम वैल्यू ड्रिवन प्रोपोजिशन है एक कस्टमर के ज़हन में, दैट मे बिकम आवर पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। हाउएवर, अगर वो वैल्यू प्रोपोजिशन इज ऑलरेडी बीन ऑक्यूपाइड by our competitors, तो लॉजिक कहता है we have to differentiate our क्या नाम है value proposition from the competitors using other areas of value creating points that we have been able to carry out from our research. तो रिसर्च में नॉर्मली द रिसर्च का प्रोसेस है वो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका था मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से। इंटरव्यूज होते हैं, फोकस ग्रुप्स होते हैं, फिर सर्वेस किए जाते हैं, और इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स के थ्रू वी आर एबल टू लिस्ट
all the requirements or value creating points that are significant for our customers. So the customers are interested in specifically stating okay, why would they use this product, why would they approach this product, if what is given in this product will attract them, so and so forth. So एक खास line उनके सामने list आ जाती है and we prioritize, and then once we have created the mean values, we should be able to say that the highest priority goes to this value proposition, the second highest goes to this value proposition, and we can create a list. Now when we in our own approach try to see कि हम इस जो भी value proposition है, अगर एक customer group है जो एक खास चीज मांगता है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो हमें फिर वो प्रेजेंट करनी है किसी अंदाज से. मैंने आपको अगर आप रिकॉल करें तो वी हैड गिवन यू पाकिस्तान में सेगमेंटिंग एरियाज एंड ट्रेंड्स जो हमारी बेवरेज मार्केट में अप्लाई कर रही हैं, और हमने वहां देखा था कि सोशलाइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. People tend to see whether there is value in the product which will help their own socializing frame. However, there was another market condition where people wanted to get satisfaction, gratification immediately. So any product or any a brand that will provide immediate gratification would become preferred. तो आपने देखा होगा, हमने explain भी किया था कि तिल मांगे अभी का जो लॉजिक है एक स्लोगन में, उसका मकसद यही था कि अभी चाहिए. You know, the concept which came about was from the logic of immediate gratification, जबकि उससे पहले दिल मांगे और था. That means you wanted to have more consumption. So एक तरफ higher level consumption था, फिर दूसरी positioning strategy में immediate gratification था कि अभी चाहिए. So why am I giving you these 2 points? कि positioning change करती है और positioning की logic change करती है जैसे जैसे market में trends वो shift कर रहे होते हैं. लोग अपनी जो उनके interest हैं, keeping in mind the globalization frame coming through, the internet working, the knowledge that is being drawn from all over the world, there is a multiple systems of movements going on and people are shifting and they are changing. और इन सब का लॉजिक जो है वो पोजीशनिंग में आता है, एंड देयरफॉर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि पोजीशनिंग में जो भी हम वैल्यू प्रोपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो वही होगी जो कस्टमर को पसंद आए, एंड इट शुड आल्सो हेल्प अस डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम द कंपटीटर्स इवन दो बोथ हैव द सेम पोजीशनिंग लॉजिक. तो डिफरेंशिएशन भी क्रिएट करनी है और वैल्यू प्रोपोजिशन भी ऐसी हो जो कि highly preferred by the customers. The second issue in positioning area or strategy is कि हम किसको position करें. Now this is a very ongoing research area और इसमें खासा interest पैदा हो चुका है लोगों का कि is brand positioning more important, is product line positioning more important, is a product mix positioning करनी है या कॉर्पोरेट ब्रांड को प्रमोट करना है. नाउ अगर मैं रिसर्च के हवाले से बोलूं तो देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज मूव्ड इनटू पोजीशन पर्टिकुलरली इन द एचआरएम सिस्टम. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अट्रैक्टिंग गुड टैलेंट इज नाउ बीइंग सर्च्ड और रिसर्च्ड इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ब्रांड्स. हमें भी मालूम है, आप अगर सिटी बैंक में जॉब मिलना है या हबीब बैंक में मिलना है तो प्रेफरेंस किसको जाती है? प्रेफरेंस किसी खास सर्विस ओरिएंटेशन से नहीं है, लेकिन जो ब्रांड क्रिएट हो गए उसके बेस पे, और ये ब्रांड जो है कॉर्पोरेट ब्रांड्स के बेसिस पर है. तो एक तो लॉजिक ऑफ पोजीशनिंग ये है कि हम किसको पोजीशन करें. शुड वी पोजीशन द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ which will be the corporate brand and cover each and every product within that category. उसके फिर अपनी लॉजिक है, जब हम जाएंगे एडवर्टाइजिंग में तो वहां वी विल ट्राई एंड कवर दैट लॉजिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि उसको हम कैसे हैंडल करेंगे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग को या प्रोडक्ट ब्रांडिंग को, और उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे. देयर आर मेनी मेथड्स टू डू दैट. तो सेकंड, जैसे मैंने कहा, वो है डिसीजन कि शुड वी brand or should we position
the whole product line, या हम अगर एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को ही किसी एक लॉजिक में पोजीशन करें. तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यू विल सी दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्टली इज ब्रांड्स. कि हम ब्रांड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को ब्रांड करें तो उसकी पोजीशन क्या क्रिएट करेंगे, या हम एक प्रोडक्ट लाइन को ब्रांड करें तो उसकी पोजीशन क्या क्रिएट होगी. तो गोल जो है वो अल्टीमेटली दो ही रह जाते हैं कि कॉर्पोरेट को कैसे करें या ना करें, और दूसरा ब्रांड्स को कैसे पोजीशन करें. शुड वी गो फॉर फैमिली ऑफ ब्रांड्स और अ ब्रांडेड फैमिली. आप ये दो वर्ड्स जब हम ब्रांड्स में आएंगे तो वहां ये नोट करेंगे, लेकिन लॉजिक वही चल रही है कि पोजीशनिंग में हम किस को पोजीशन करें और उसकी पोजीशनिंग जो प्रोपोजिशन है वो हम बनाएं क्या. ठीक है. तो अब keeping from that logic of what is positioning, we know that it's an image that we create of the product or the corporation or the brand in the eye and the mind of the customer. हम उसको क्रिएट करते हैं और हमारी जो ऑब्जेक्टिव होती है वो पोजीशनिंग की वो ये है कि इट शुड बी डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम ऑल अदर products, brands, competitors, but also must link with the requirements of the customer in such a way कि उसको positioning समझ आए clearly. Now, to be able to do this, we need to have a product concept. A product concept के लिए we need to be able to categorically develop this concept, and it is coming out of the value system, like I told you, of the customers that is on our target. Now, finally, the logic is, and I will now draw this on the chart to explain it in a pictorial form, कि तीसरा ये होता है कि positioning को हम assess करें कि is our positioning correct. तो उसमें हम आता है positioning evaluation. So, number one, we have positioning concept, then the positioning strategy, the third and the final is the positioning evaluation. Now, positioning strategy में, क्योंकि अभी हम concept की बात कर रहे थे, तो बीच में positioning strategy में the logic is integration of all marketing programs across all the 4 P's, as well as integrated with all the processes of the company. Now, ये एक चीज है जिसको ऊपर थोड़ा सा मैं I will develop a little more. I will explain a little more. Why am I saying all this? अगर integration is only related to the marketing mix and it is not linked with the other processes that are operating in a company, the positioning will normally fail because it's an integrated process. So it incorporates the logic of the whole company to position the concept in the mind of the consumer by supportive frames. अगर वो supportive frame नहीं होंगे, तो it becomes very difficult to be able to achieve the goal of the company. Okay, now what I'm going to try to do is to show you the positioning cycle. Now, I have developed this word for the purposes of seeing that this cycle is a constant process, and uske liye we would need to look at the figure and see how it is a reiterative process. Now, reiterative process का मतलब क्या है? It is that it is a continuously improving process from the various systems that we develop. लेकिन जब हम ये cycle बनाते हैं, positioning cycle, तो I will call it positioning. And in this positioning cycle, the central part is the target market. Okay, so central part goes to the target market, and like I said, the first step is to develop a concept. So we have a concept. This is the positioning concept, and I had already explained to you that this concept is logically drawn from the value propositions that we have presented to the customers, and the best choice of the value proposition we will take. Now, from here, the concept has to move towards the strategy, positioning strategy.
And in this area, what we had discussed in the positioning strategy is that the positioning is constantly related to integration of all programs within the marketing mix area, which includes how the product is going to function, packaging uski promotion kaise hogi, pricing kya hogi, logistical programs kya honge. But like I said, it has to be an integrated system because iske andar per supply chain to support your logistical strategies coming in, HR to support the kind of capabilities that you will require to promote that, the kind of people or the organizations, the outsourced organizations will be able to help and support the advertising area because normally companies tend to outsource their advertising systems. So wo aa jayega. Keeping this, it is an integrated. So this is the most significant part of the positioning concept, positioning logic, positioning strategy development. However, the start point from where everything will draw comes from the concept point of view. Now again, once the concept has been or positioning has been created, we need to have evaluation of the positioning. जैसे मैंने कहा, आपको regularly evaluate करना पड़ेगा for a simple reason कि evaluation में we are constantly looking at how the market की जो requirements है change कर रही है. अभी मैंने आपको example दी थी कि पहले एक company अपने product को दिल मांगे और के बेस पे चल रहा था, फिर दिल मांगे अभी पे आ गए, which means एक जगह के ऊपर वो हाई कंजम्पशन पैटर्न्स को ला रहे थे जो कि एक ट्रेंड है. ट्रेंड कंज्यूमर्स में बहुत जरूरी है कि ये जो जिसको हम कहते हैं कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन या हायर यूजेज रेट्स, नॉर्मली एक जमाने में ज्यादा कंजम्पशन जो है वो इंपॉर्टेंट थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट नाउ people have tended to move towards desiring to have their desires satisfied immediately. Now, jab wo hua, to positioning concept has shifted. And I'll give you more examples in terms of positioning systems as they have changed and what are the impacts coming in. So, evaluation की ज़रूरत है कि market के साथ क्या ये जो positioning हमने की है, ये compatible रहेगी या नहीं रहेगी. इसके लिए we will be discussing in our next class the way we can look at it and positioning भी कि हम इसको कैसे present करेंगे, तो वो I'll just cover it. Now again, evaluation will force you to re-evaluate the concept. जैसे अभी example भी दी, अब re-evaluation of the concept अगर है तो हो सकता है concept में change आए, अगर concept में change आती है तो strategy change करेगी तो evaluation में फर्क आएगा. And once the evaluation is completed, हो सकता है strategy जो है उसको दोबारा conceptualize किया जाए और उसके लिए नए thoughts लाए जाए. ये process जो है is more or less in a reiterative frame. So हम बार बार इस चीज को करते रहते हैं और those companies are successful which are able to constantly keep their products and brands matched with the requirements of the company. यहाँ याद रखिएगा कि brand image की हम बात करेंगे और फिर देखेंगे कि brand image में positioning का क्या हाथ है और क्या जो brand image हमने create किया वो allow करता है to position the product again or to position the product again within the brand image concept. ये जब हम brands पे आएंगे तो वहाँ ये एक important question होगा जो I hope you will be able to remember to raise this question to yourself and to study more around the frame. मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी है कि brand image और brand equity एक बहुत important area है. अगर आप उस ब्रांड इमेज को नई पोजीशनिंग से अफेक्ट करेंगे तो हो सकता है सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो और ब्रांड जो है वो अपनी क्वालिटी लूज कर जाए. तो उस पॉइंट पे वी विल लाइक टू नो कि क्या अगर एक ब्रांड क्या नाम है ब्रांड इमेज क्रिएट हो गया तो उसमें फिर पोजीशनिंग की क्या लॉजिक है. जस्ट टू रिकैपिचुलेट आपको एग्जांपल देता हूं. आपको याद होगा कोका कोला, पहले भी मैंने एग्जांपल दी है लेकिन नाउ आई एम स्पेसिफिकली पुटिंग इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोजीशनिंग एंड ब्रांड. कंपनी की एक ब्रांड पोजीशनिंग थी या एक ब्रांड इमेज था
जो कंपनी was not very clear, हो सकता है उनके जहन में हो कि ये positioning is क्या नाम है, a quality brand, positioning was a very high क्या नाम है, preferred brand. क्वालिटी का इशू था. वो कैसे हाईलाइट हुआ था कि पेप्सी ने जब मुकाबले पे उतरी तो दे ट्राई टू कैरी आउट ब्लाइंड टेस्ट. नाउ ब्लाइंड टेस्ट इज अ मेथड by which you pour or you put the products, the two competing products or three competing products in glasses without showing कि कौन सा product किस glass में है. And then you call customers to come and drink these or use the product or find और फिर बताएं कि कौन सा उनको preferable है. तो हुआ क्या कि जब स्टडी हुई तो दे इनवाइटेड पीपल हु वर कोका-कोला के जो लॉयल पीपल थे, दे आल्सो इनवाइटेड पेप्सी के लॉयल पीपल थे. दे पुट द ग्लासेस एंड दे आस्क्ड ईच पर्सन टू कम एंड ड्रिंक फ्रॉम द ग्लासेस एंड पॉइंट आउट कि उनको कौन सा टेस्ट बेहतरीन लगा. अब जब ये जो रिसर्च थी ये टेलीविजन पे हो रही थी, दिखाई जा रही थी. तो एट दी एंड क्या हुआ कि जब उन्होंने कंपाइल किए रिजल्ट्स तो पता ये चला कि जो लोग लॉयल थे कोका कोला के, दे एक्चुअली प्रेफर्ड पेप्सी कोला इन टर्म्स ऑफ टेस्ट. अब जैसे मैंने कहा, ब्रांड इक्विटी या ब्रांड का जो इमेज था वो क्या उसकी नौयत थी, उसके पीछे क्या फ्रेम ऑपरेटिव था. और यहां इन्होंने जब ये सर्वे करवाया तो उसमें they actually chose the taste as a criteria. जब कोका कोला को ये क्या नाम है हिट हुआ कि टेस्ट के बेस के ऊपर मार्केट में थोड़ी सी शिफ्ट आई. Now जब मार्केट में शिफ्ट आई तो कोका कोला got a little panicky, so they went into high level of experimentation and testing and all that to develop a new taste. अब जब उन्होंने नया टेस्ट क्रिएट किया और उसके ब्लाइंड टेस्ट करवाए तो वाकई वो टेस्ट जो था वो was considered to be better than either the Pepsi or the old Coca-Cola. लेकिन हुआ क्या कि they launched this and positioned this as the new Coke. जब न्यू कोक के बेस के ऊपर ये पोजीशन की गई तो उसके लिए उसकी पैकेजिंग भी चेंज कर दी गई. जो ट्रेडिशन कोका कोला की पैकेजिंग है वो भी खत्म हो गई, उसकी एडवर्टाइजिंग चेंज कर दी गई, उसके प्राइसिंग फ्रेम्स को चेंज किया गया. जब ये सारी चीजें की तो मार्केट में बहुत सख्त रिएक्शन हुआ. और वो रिएक्शन कहां से आया? वो ब्रांड लॉयल जो थे कोका कोला के, दे रिएक्टेड वेरी नेगेटिवली अगेंस्ट दिस न्यू पोजीशनिंग फ्रेम. बिकॉज वही बात जो मैंने की कि वहां उनके जहन में द इमेज ऑफ कोका कोला वॉज वेरी डिस्टिंक्ट and had nothing to do with taste and other features. So their reaction resulted in a reversal of the positioning strategy, and Coca-Cola was able to relaunch their old brand as Classic Coke. और हमें पता है कि that Classic Coke re-established Coca-Cola as the leading brand, particularly in America and around the world. तो इसमें से मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि yes, positioning will change regarding related to how the PLC, the product life cycle moves, how the innovation diffusion is taking place. Along the route, we also have to be very careful to see कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना कर दे जो ब्रांड इमेज ओवर टाइम क्रिएट हो रहा है. और मिसाल के तौर पे कई कंपनीज जो पहले से ही मुख्तलिफ मार्केट्स में ऑपरेट कर रही हैं और उनके अपने ब्रांड इमेजेस बन चुके हैं, जब वो किसी नए प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करेंगे तो वहां उनकी पोजीशनिंग कहीं कॉन्फ्लिक्ट में ना चली जाए उस ब्रांड इमेज से जो क्रिएट हो रहा है. सो दिस एरिया वी विल कवर व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट branding and brand images and brand equities to see how positioning is related there. But for now, what we are interested in is to see कि brand positioning concept होगा. Positioning concept के साथ उसके जितने भी programs हैं, they will be moving into position. Once they are moving into position, integration, good successful programs will result in obviously high market shares, result in more profitability, more brand equity. But like I said, shifts take place in the environment, customer needs,
ट्रेंड्स चेंज, सो हो सकता है वही प्रोडक्ट, वही ब्रांड को नई पोजीशनिंग चाहिए हो, कीपिंग इन माइंड द इमेज दैट हैज बीन क्रिएटेड. सो कीपिंग दीज फ्रेम्स इन पोजीशन, वी विल आल्सो लुक एट एन एग्जांपल. आपने नाम सुना होगा गैटोरेट का. गैटोरेट इज अ स्पोर्ट ड्रिंक और ये पोजीशन टारगेट किया गया है टुवर्ड्स people who are very active and they are operating normally. This action or this involvement of their activities are normally where there is heat and there is thirst. यानी कि obviously जब हम sports खेलते हैं, particularly intensive sports हैं, long distance running है, squash है, tennis है, तो वहाँ conditions become hot as well as creates thirst. अब ये target market है थी, लेकिन Gatorade ने अपने आप को पोजीशन ऐसे किया कि दिस इज द बेस्ट थर्स्ट क्वेंचर, यानी कि टू रिड्यूस थर्स्ट दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, और उसको बैकअप किया बाय मेडिकल टेस्ट्स. यानी कि उन्होंने सिर्फ ये पोजीशन देने की को इक्तफा नहीं किया, दे आल्सो वेंट एंड कैरिड आउट मेडिकल टेस्ट टू प्रूव दैट देयर प्रोडक्ट इज नॉट ओनली अ थर्स्ट क्वेंचर, यानी कि वो थर्स्ट को कम करता है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स रिप्लेनिश द बॉडी टू रीकैप्चर द लिक्विड्स दैट आर लॉस्ट इन स्वेटिंग. जब उन्होंने इसको पोजीशन किया तो दिस गैटोरेड इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्राइज्ड और वैल्यूएबल sports drink in the world. Gatorade has that level achieved. Given this, तो हमने देखा कि पहले टारगेट सिलेक्ट होगा, फिर हम पोजीशनिंग लेकर आएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी क्या बनेगी. जैसे मैंने आपसे कहा कि अब पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी तो बन गई, हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग ऑल द पीस. बट लास्ट जो चीज रह जाती है वो है इफेक्टिवनेस. सो इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हमने दो तीन चीजें, हमारे पास टूल्स हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई एंड एक्सपैंड ऑन दोज टूल्स आल्सो. लाइक आई सेड, वी हैव टू हैंडल द लॉजिक ऑफ इफेक्टिवनेस बिकॉज दैट विल फीड इनटू द कॉन्सेप्ट एरिया. नाउ द टूल्स दैट वी हैव for effectiveness evaluation are two. One is consumer perception, so therefore we call them perceptual maps. Second is positioning. Now इनका आपस में एक strong link है कि हम पहले perceptions देखते हैं about how customers view all the products within the product marketscape. क्या नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एक चीज़ होती है, लेकिन फिर प्रोडक्ट मार्केट स्पेस होती है जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू पोजीशन, वेयर प्रोडक्ट मार्केट स्कोप इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द मार्केट इन विच वी विल बी ऑपरेटिंग. बट प्रोडक्ट मार्केट स्पेस होती है कि जहां वो प्रोडक्ट्स कैटेगोरिकली पोजीशन किए जाते हैं जो उस मार्केट में, सेगमेंट में compete कर रहे हों. So perceptual maps actually suggest the perceptions of the customers regarding the products which exist in that product market space. दूसरी, जब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ ज़हनों में बैठी हुई है, using the same value propositions and same value systems, जिसका मैंने आपको पहला थोड़ा सा जिक्र किया, तो अब हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग मैप बनाते हैं. प्रोडक्ट पोजीशनिंग मैप में वी ट्राई एंड लोकेट अ पॉइंट और एन एरिया वेयर वी थिंक वी विल बेस्ट फिट इन द सिस्टम. हैविंग ब्रॉट दीज टू पॉइंट्स, तो ये थोड़ा सा वी विल बी यूजिंग द बोर्ड टू मेक श्योर दैट दिस लॉजिक इज क्लियर. आई विल ऑल्सो बी एबल टू show some slides on how perceptual maps are created and how position maps are created. We will be defining these things. So in the last part, what I will be doing is to try and set up the logic of how positioning is to be undertaken around what points. मकसद कहने का ये है कि positioning तो strategy बनती है, बनेगी, लेकिन broadly we should be able to understand कि जो positioning है वो किस नौयत पे की जा सकती है. On what broad categories can we actually position our products? Now यहाँ तीन क्या नाम है मुख्तलिफ लॉजिक्स ऑपरेट करती हैं.
कि एक है कि आप प्रोडक्ट को फंक्शनली पोजीशन करें। मिसाल के तौर पे एक कार है तो आप उसको फंक्शनली पोजीशन कर सकते हैं एज द मोस्ट और द सेफेस्ट कार ऑन द रोड। आप उसको पोजीशन कर सकते हैं अ कार विच कैन रीच 100 किलोमीटर्स इन 6 seconds। अब ये फंक्शनैलिटी ऑफ द स्पीड is going to be targeted at those people who are interested in adventure and particularly concerned with how they can run the car on the motorways and how speed is attractive to them. On the other side, जब आप कहते हैं the safest car, तो थोड़ा सा लॉजिक ये समझाता है कि these are targeted to those people who are concerned about life and most probably these are those people जिनकी फैमिली है और जिनके साथ हो सकता है बच्चे हों sitting in the car. So they are more concerned, the family people are more concerned with the safety and security of the people who they love, whereas the person who is going to be interested in speed is going to be more or less an individual who is adventurous, who desires to be able to get all the excitement and all the benefits of running a speedy car. Okay, so functionality पे तो हमने बात कर ली। उसके अलावा जो दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है सिंबॉलिक, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं एज अ सिंबल। अब अगर आप गौर से देखें अपने जितने भी आपके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं या जितने भी क्लासी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉर्मली दे आर पोजीशन्ड पर्टिकुलरली एज सिंबॉलिक। रोलेक्स वॉच है, ये उनके लिए है जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स कहलाते हैं। सिंबल है टू डिस्टिंग्विश यू एज अ सेल्फ एक्चुअलाइजर फ्रॉम ऑल द अदर पीपल। तो अगर आप उनके एड में देखेंगे तो वहां शुरू में रोलेक्स के जो क्या नाम है जो मॉडल था वो था जिसने पहली दफा माउंट एवरेस्ट को सर किया था। दैट मीन्स दे यूज्ड हिलरी टू पोर्ट्रे the logic of self-actualization when they promoted their Rolex brand. Subsequently, they have continuously used, they've used the, what do you call, these tennis players who have achieved a very high status in the area of tennis. तो उसमें भी self-actualization, achievements, उसका जो logic है, symbolic logic है, उसको इस्तेमाल किया है रोलेक्स वॉचेस ने। और many products are normally applied and used in terms of the symbol that they create. कई कार्स भी ऐसी हैं जिनको symbolically हम relate कर सकते हैं। Rolls Royce is a car which is now becoming a symbol of highest quality possible. That is why we normally, when we talk about a product which is considered to be top of the line, तो हम normally कहते हैं कि this is the Rolex of industry। यानी कि जब भी हम किसी अच्छे प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं सिंबॉलिकली तो हम उसको रेफर करते हैं रोल्स रॉयस के साथ। नाउ ये रोल्स रॉयस का जो पोजीशनिंग लॉजिक है या उसका जो इमेज क्रिएट हुआ है इस पोजीशनिंग के बेस के ऊपर, जैसे मैंने कहा सिंबॉलिकल है, लेकिन उसके पीछे बहुत से मुहर्रकात हैं। दे हैव गॉट द फैसिलिटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग रोल्स रॉयस aircraft engines. They also have the logic of their production system, which is customizing each car. So they do not normally tend to have assembly lines running, but वो customize करते हैं हर कार को, तो उसकी जो quality है या उसकी जो perception है in the minds of the consumer, that comes from a mixture of things। जैसे मैंने कहा वो integration है, ना सिर्फ उनकी advertising के हवाले से, ना सिर्फ उनके कस्टमर्स के हवाले से, बट उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस, उनकी बैकअप जो कैपेबिलिटीज हैं वो सारी इसमें शामिल हो जाती हैं। नाउ द लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज पोजीशनिंग एज एक्सपीरियंशियल। नाउ एक्सपीरियंशियल में कुछ फंक्शनल का भी एरिया आता है, लेकिन एक्सपीरियंशियल की जो लॉजिक है वो प्योरली है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सपीरियंस that we will draw
if we use this product. Now, experience को पोर्ट्रे करना सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज आप एक प्रोडक्ट को खरीदे बगैर उससे ये लॉजिक अज्यूम कर रहे होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस विल आई हैव. तो जब आप इस चीज की तरफ जाते हैं तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट योर लॉजिक is presented in a way that can be understood by the consumer through his own personal experiences. अब अगर आप गौर से देखें तो माउंटेन ड्यू जो है वो पोजीशनड है ऑन एक्सपीरियंस. आपने उनके जितने भी एड्स देखे उसके अंदर एक खास लॉजिक ऑफ एक्सपीरियंस है दैट यू कैन शेयर और यू कैन इंडिविजुअली अचीव if you are involved with drinking that product. So experiential is different than symbolic, is different than functional. तो हमारा जो अब तक का डिस्कशन है उसमें we have tried to understand, जो हमने टारगेटिंग में कंप्लीट कर लिया था कि टारगेट्स की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, तो we have come to the conclusion कि there are a number of integrated frames. उसमें जो पहला फ्रेम हमारे पास है वो बेसिकली मैंने आपको बताया पीएलसी का था, बिकॉज पीएलसी और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलोंग विद प्रोडक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि पोजीशनिंग होगी कैसे गिवन द लॉजिक ऑफ द टारगेटिंग स्ट्रैटेजी. जहां हमने कहा था कि टारगेटिंग स्ट्रैटेजी में आप एक सेगमेंट को चुने, दो को, मल्टीपल को या पूरी मार्केट को आप टारगेट करें, और उसी के बेस के ऊपर हमने यही लॉजिक दी थी कि पीएलसी में जब हम इंट्रोडक्शन में आते हैं तो नॉर्मली उस वक्त चूंकि सेगमेंट्स नहीं होते तो वो जो भी इनोवेटर्स उस वक्त इंट्रोडक्टरी स्टेज में होते हैं हम उन सबको टारगेट करते हैं. इट्स ओनली इन द ग्रोथ स्टेज एंड इन द मैच्योरिटी एरिया व्हेन वी एक्चुअली सेगमेंट द मार्केट्स एंड देन वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन. शुड वी पिक एनी वन सिंगल सेगमेंट, शुड वी पिक टू, शुड वी पिक मल्टीपल, or again target the whole market as one single segment that we should approach. अब उसके अंदर ही उसी लॉजिक के बेस पे हम फिर पोजीशनिंग में आते हैं और फिर भी वही बातें आ जाती हैं कि अगर एक मार्केट को या सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो पोजीशनिंग जो है हमारी वो खास उसके हवाले से होगी. अगर हम पूरी मार्केट में जा रहे हैं तो फिर उसकी पोजीशनिंग क्या होगी, और अगर मल्टीपल मार्केट्स में जा रहे हैं तो हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, सिंगल पोजीशनिंग होगी या हम हर क्या नाम है गिवन टारगेट मार्केट को एक सेपरेट पोजीशनिंग लॉजिक ऑफर करेंगे, और उसमें फिर पोजीशनिंग जब लॉजिक हम ऑफर करेंगे तो वो हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है, जिसको हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दी वैल्यू प्रोपोजिशंस दैट आर मार्केट नीड्स. अब यहाँ इंटीग्रेटिव लॉजिक में वी नीड टू हैव अनफ रिसर्च to back up our logic कि value proposition होगी क्या, क्योंकि we have to understand the customer's need and requirements specifically to be able to achieve this goal of values that we will create. Now with this I'm coming to the conclusion of this session, and like I said, in the next class we will be discussing the perceptual maps as well as the positioning maps. And then we will see if we can continue with bringing some new topics within the product market area and see how we can integrate these three things. But remember that the two tools which are very significant for the purposes of positioning is perceptual map calculations as well as the positioning map. Okay, with this I come to the conclusion, and then in the next class we will continue with our discussion on the tools that we can apply in terms of the positioning strategy. Thank you very much and see you next week. Allah Hafiz.